آپ کو بتائیں کہ ناظم آباد میں دو سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں تصادم، شدید فائرنگ سے علاقہ میدان جنگ بن گیا ہے۔ فائرنگ سے ایک کارکن جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ مشتعل افراد نے دو گاڑیوں اور ایک موٹر سائیکل کو آگ لگا دی ہے۔ جائے وقوع پر شاہزیب حسین موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ شاہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ رات دو سیاسی جماعت کے کارکنان کا درمیان تصادم ہوا تھا ناظم آباد 2 نمبر ملٹی چوک پر، جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں، اور یہاں پر اب سے کچھ دیر قبل متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہے مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھ ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی اور ساتھ ہی ساتھ رابطہ کمیٹی کے اراکین جو ہے یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے جو مخالف سیاسی جماعت ہے ان کے کارکنان جو ہے ملوث پائے گئے ہیں۔ ان کے عہدیداروں نے جو ہے یہاں پر حملہ کروانے کا جو ہے ان کے اوپر جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ پولیس کے حوالے سے بات کی جائے تو پولیس کو یہاں پر جو تصادم ہوا تھا، جو فائرنگ ہوئی تھی اور فائرنگ میں جو ہتھیار استعمال کیے گئے تھے، جو کارکنان تھے جو لڑ رہے تھے، جو مشتعل افراد دکھائی دیتے تھے، اس کی ویڈیوز بھی جو ہے ان کو حاصل ہو گئی ہیں اور اس کی مدد سے جو ہے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی نے اب سے کچھ دیر قبل یہاں کا دورہ کیا۔ یہاں پر جو سینئر پولیس افسران موجود تھے ان کی جانب سے یہاں کے حقائق و شواہد کے حوالے سے بتایا گیا، اور ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنان کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے جو سیاسی جماعت کے عہدیدار ہیں ان سے جو ہے اپیل کی ہے کہ اپنے سیاسی کارکنان کو اس طریقے کی جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے جب الیکشن قریب آتے ہیں تو تصادم کے واقعات میں اضافہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، تو کسی کو ان کو ہدایت کی کہ کوئی بھی کارکن جو ہے سڑک پر نہیں آئے، تصادم نہیں کرے۔ الیکشن کمپین چلانا جو ہے سب کا حق ہے، لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے تو رات کو جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں ایک ایم کیم کا جو ہے کارکن فراز جو جاں بحق ہوا تھا۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے کارکن راؤ طلحہ جو ہے زخمی ہوا تھا، جن کو طبی امداد کے لیے جو زخمی ہے اس کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا، لیکن یہاں پر اس وقت جو ہے علاقے میں اس وقت بھی خوف و ہراس ہے، کیونکہ گزشتہ رات یہ علاقہ جو ہے فائرنگ کی آواز سے جو گونج اٹھا تھا۔ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے، میرے کیمرہ مین حارث اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں کی دکانیں اور مارکیٹیں جو ہے بند ہیں، اور یہ NA 249 متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا مرکزی الیکشن آفس ہے، جہاں سے چند قدم کے فاصلے پر فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس وقت جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جو متحدہ کا مبینہ کارکن جو فراز کل جو جاں بحق ہوا ہے رات کو، اس کی نماز جنازہ بفر زون میں جو ہے ادا کی جائے گی، جس میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے اہم ترین رہنما جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ جی اچھا شاہزیب، ابھی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ خوف کی فضا تو ہے، لیکن یہ بتائیے گا صورتحال کیا ہے علاقے میں؟ امن ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جن دو گروپوں میں تصادم ہوا تھا کیا بتایا جا رہا ہے؟ اسی علاقے کے رہائشی تھے یا کہیں اور سے آئے تھے؟ جی بالکل، اگر علاقے میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو پولیس کی بھاری نفری جو ہے یہاں پر تعینات کی ہوئی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ علاقے میں خوف کی فضا جو ہے قائم ہے، کیونکہ رات کو یہاں پر شدید فائرنگ ہوئی، جس میں دیکھا گیا کہ ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوا، اور متعدد کارکنان بھاگ دوڑ کے دوران زخمی ہوئے۔ یہ دو سیاسی جماعت کے کارکنان کا آپس کا جھگڑا تھا، اور اسی علاقے کے ہی رہائشی بتائے جاتے ہیں، جبکہ میرے کیمرہ مین حارث اگر آپ کو اس طرف دکھائیں تو یہاں کے اطراف کی جو مارکیٹیں ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں، جو جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اکا دکا دکانیں جو ہے کھلی ہوئی ہیں، لیکن جو خوف کی فضا ہے وہ تو یہاں پر طاری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں تو یہاں پر جو سینئر پولیس افسران ہیں ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی، وہ اپنے علاقائی جو پولیس افسران تھے ان کے ساتھ یہاں پر آئے، انہوں نے جائے وقوع کا معائنہ کیا، جو گاڑی نظر آتش کی گئی ہیں ان کا معائنہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ جی شاہزیب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ہم نے ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کی گفتگو سنی، کافی تفصیلی گفتگو کی انہوں نے، الزام انہوں نے کسی پر نہیں لگایا، ڈائریکٹ انہوں نے کسی کو ہٹ نہیں کیا۔ غیر رسمی گفتگو میں جب صحافیوں سے انہوں نے بات چیت کی ہو تو کیا انہوں نے کسی پر الزام کیا یا شک کا اظہار کیا ہو؟
جی بالکل الزامات کی جو ہے بارشیں تو مصطفیٰ کمال نے کی ہیں، لیکن یہ اس پر جو ہے تحقیقات کی جائیں گی کہ آیا اس واقعے میں کون ملوث تھا۔ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جن پر الزام لگایا جا رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے بھی جو ہے انکوائری کی جائے گی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے عام انتخابات ہوتے ہیں، اگر ہم 2018 کی بات کی جائے یا پھر 2013 یا اسی طریقے سے 2008، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طریقے کا ماحول ہوتا ہے تو جیسے جیسے الیکشن کا دن قریب آتے رہتے ہیں تو سیاسی جماعت کے کارکنان میں تصادم کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جی بالکل، جس طریقے سے گزشتہ روز جو 3 تلوار پر واقعہ پیش آیا دیکھا گیا، اس میں پولیس اور اسی طریقے سے جو صحافی برادری ہے ان پر بھی جو ہے تشدد ہوا۔ تو گزشتہ رات بھی یہاں پر جو ہے سیاسی جماعت کے کارکنان آپس میں لڑے تھے، جس میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوا، جبکہ بھاگ دوڑ کے دوران متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ تو پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون اس واقعے میں ملوث تھا۔ اس وقت جو ہے دونوں جماعتوں کے اہم عہدیداروں کی جانب سے ایک دوسرے پر جو ہے الزامات کی بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پولیس کی جانب سے بھی جو ہے ایک لائحہ عمل طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعت کے کارکنان جو ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس طریقے کے واقعات میں جو اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت کے کارکنان صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بہت شکریہ شاہزیب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایسی کارروائیوں سے کسی کا فائدہ نہیں، ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کی وارننگ، کہا کہ ملوث افراد کو انجام تک پہنچایا جائے گا، کسی کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ الیکشن پروسیس سٹارٹ ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریسٹرین شو کرنا چاہیے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے کسی بھی پارٹی کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دونوں طرف نقصان ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر یقیناً لیگل ایکشن جو بنتا ہے وہ ہوگا، اور پروسیس سٹارٹ بھی ہے۔ اور آگے کے لیے بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر میں وارن کرنا یا تنبیہ کرنا مناسب سمجھوں گا اسٹیٹ کی طرف سے۔ میں پرسنل کیپیسٹی میں کچھ نہیں ہوں، اسٹیٹ کی طرف سے تنبیہ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا اس کو بالکل کیفر اقدار پر پہنچایا جائے گا، اس کے خلاف پراپر لیگل ایکشن ہوگا اور کسی کو اس پہ نہیں کیا جائے گا۔ میں پھر لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ اس طرح کے ویپنز کے ساتھ نہ ہو، اور ہم آئندہ سے اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ جو ریلیز کی صورت میں اگر کسی کے ساتھ ویپن نظر آیا ہمارے پاس تو ہم ان کے خلاف پراپر ایکشن لیں گے۔ اگر ویپن دیکھا گیا آپ کے توسط سے تمام کو انفارم کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ریلی کے اندر، کسی بھی جلسے کے اندر اگر ویپن دیکھا گیا تو اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ پراپر لیگل ایکشن لیں گے۔ اور یقیناً فائرنگ تو ہوئی ہے، اور فائرنگ ہوئی ہے تو فائرنگ کے اندر دیکھیں گے کس طرف سے ہوئی ہے، کیا ہوا ہے۔ یقیناً ایک طرف سے آپ کو پتہ ہے فراز نام کے جو شخص ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، طلحہ نام ہے ان کا مائنر انجرڈ ہیں، لیکن اصل چیز یہ بھی دیکھنا مناسب ہوگا اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہ کیا کسی کو ریلی اس طرح سے سامنے وہاں جانا چاہیے تھا، یہاں آنا چاہیے تھا۔ کراچی میں حلقہ NA 229 2,32,000 ووٹرز پر مشتمل ہے۔ اس حلقے کا زیادہ حصہ گڈاپ اور میمن گوٹ کے دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، البتہ اسٹیل ملز اور پورٹ قاسم سمیت شہری علاقے بھی شامل ہیں۔ 184 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں عاجز جمالی سے۔ عاجز جمالی، بتائیے گا اس علاقے کے مسائل کیا کیا ہیں؟ جی دیکھیں، یہ حلقہ ہے قومی اسمبلی کا NA 229، اور اس حلقے میں اس وقت دیہی علاقوں کی بڑی تعداد جو ہے شامل ہے، جبکہ شہری علاقے بھی شامل ہیں جیسے گلشن حدید، اسٹیل ٹاؤن اور رزاق آباد جیسے علاقے ہیں، لیکن زیادہ حصہ گڈاپ کے دیہی علاقوں اور جو میمن گوٹ، پپری اور ان دیہی علاقوں پر مشتمل ہے۔ دیہی علاقوں کے مسائل تو بڑے خستہ حال ہیں، شہری علاقوں سے زیادہ یہاں مسائل ہیں۔ صحت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، یہاں یہ سارے مسائل موجود رہتے ہیں۔ 184 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، 575 پولنگ بوتھ ہوں گے اس حلقے میں۔ میں کچھ شہریوں سے بات کر لیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ مسائل کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں عاجز جمالی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی بھر میں مسائل ہیں اور بیڈ کنڈیشن ہے بہت زیادہ۔ حلقہ NA 229 بھی اسی طرح ہے، اور میمن گوٹ اور گڈاپ کے کچھ حصوں پر یہاں پر موجود ہیں دیہی علاقے، البتہ اسٹیل مل اور پورٹ قاسم سمیت شہری علاقے بھی
यहाँ पर शामिल हैं। आजिज जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं। आजिज, मसाइल के हवाले से आप अपडेट कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे मैं बता रहा था कौमी असम्बली के हल्के NA 229 के बारे में, तालीम और सेहत देही इलाकों का बहुत बड़ा मसला होता है। यहाँ सेहत मराकज़ तो नज़र आते हैं लेकिन अद्वियात की किल्लत होती है। स्कूल और कॉलेजेस तो मौजूद हैं लेकिन असातिज़ा की किल्लत है, सहूलियात का फुकदान है। इस वक्त मेरे साथ इसी इलाके के शहरी मौजूद हैं, मैं इनसे बात भी कर रहा हूँ। आप बता रहे थे कुछ मसाइल। आजिज, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर। कराची का हल्का है NA 229, 2,32,000 वोटर्स पर मुश्तमिल है। एक शहरी गुफ्तगू कर रहे हैं। आजिज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा इस हल्के के हवाले से। जी हाँ, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो मैं इसी हलके के शहरियों से बात कर रहा था, जो हालांकि मेरे साथ जो शहरी मौजूद हैं इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ है। ये खुद बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन मसाइल यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ये लोग बता रहे थे, आपकी नज़र में यहाँ इस इलाके में कौन से मसाइल हैं? इधर तो हमारे पास बिजली का बहुत मसला होता है। लाइट हमारे पास होती नहीं है, पूरे दिन में 1-2 घंटे के लिए चलती है बस। और कौन से मसले हैं? यही मेन मसला हमारा गैस का भी है। गैस बंद हो जाता है हमारा रात को 10 बजे। सुना आपने, बिजली तो होती ही नहीं है। बता रहे हैं 24 घंटे में 2 घंटे मुश्किल से यहाँ पर मेमन गोट का ये इलाका है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बिजली नहीं होती, गैस की किल्लत है। तालीम, सेहत, बिजली, गैस, सड़कें, ये सारे मसले जिस तरह पूरे कराची में मौजूद हैं, इसी इलाके NA 229 का हल्का जो है, इसका इलाका मेमन गोट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ भी इसी तरह के मसाइल दरपेश हैं लोगों को। यहाँ भी इसी किस्म के मसाइल दरपेश हैं लोगों को। ठीक है आजिज, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। NA 238 के इलाके बहादुराबाद के अवाम भी बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी पर नाला है। कहते हैं इलाके में सीवरेज निज़ाम मफलूज हो चुका है। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जहां 238 के हलकों के अंदर जाते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं बहादुराबाद का वो इलाका जो कि इंतहाई पॉश इलाकों में इसका शुमार होता है। लेकिन यहाँ पे भी शहर के दीगर इलाकों की तरह जो है वो मसाइल, बुनियादी सहूलतें जो है लोगों को मैसर नहीं है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जो एक अहम मसला है वो हम यहाँ के मुकामी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा क्या आपका एक दरीना मसला है बहादुराबाद का, ज़रा ये बताइए। और 8 फरवरी को कौन सी जमात को वोट देने जा रहे हैं? खैर, ये दरीना मसला खाली बहादुराबाद का नहीं है, पूरे कराची का मसला है। और जब से यहाँ पर MKM को बैकअप पे दिया है, जब से तो और इसका सत्यानाश खंडर बना दिया गया, कराची को खंडर बना दिया। खाली बहादुराबाद सोसाइटी नहीं, इधर से भी बदतर हो गई है, समझे ना। तो जब तक MKM और यहाँ के मुकामी लोग इधर नहीं आएंगे और उम्मीदवार नहीं होंगे और असम्बलियों में नहीं जाएंगे, इस कराची को कोई भी सुधार नहीं सकता। आप भी यही के हैं, तो क्या समझते हैं? एक तो सीवरेज का बड़ा मसला, टूटी फूटी सड़कों का मसला, इसके अलावा दीगर जैसे गैस, बिजली और उसका क्या कोई यहाँ मसाइल मौजूद है? परेशानी ये है कि आप घर में जाओ तो लाइट नहीं, अच्छा उसके बाद खाना खाने बैठो तो गैस नहीं। अब किस तरह बच्चों को कन्विंस करें, वाइफ को कन्विंस करें, क्या करें? सारा दिन रोडों पे मेहनत करें, घर में आए तो फिर गैस नहीं, लाइट नहीं। सबसे मेन मसला जो शहर का है, कराची का है, इससे पिछले टेन्योर जो गया है वो पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। MNA MPS सब वही लोग थे। आज भी उन लोगों ने क्या किया है, यहाँ से खड़े किए MNA MPS पूरे शहर से। सिर्फ और सिर्फ 2 लोग उर्दू स्पीकिंग है जो कराची के मुकामी है, अदरवाइज सारे के सारे हमारे जो है KPK से, कोई मानसेरा से, कोई यहाँ से। मकामी लोगों को यहाँ का हिस्सा दिया जाए, मकामी लोगों को यहाँ से खड़ा किया जाए। ये एक बुनियादी मसाइल जो हैं वो कराची के जिस हल्के में भी हम जा रहे हैं, हमें बुनियादी ज़रूरियात जो है वो कराची के लोगों को महरूम होते हुए, और उनका कहना है कि अब आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो उसके अंदर जो MKM पाकिस्तान थी उसका पिछले इलेक्शंस में बाइकआउट था, लेकिन अब जो कराची के लोग हैं, मुकामी लोग यहाँ से खड़े हुए हैं, उन्हीं को वोट डाला जाएगा और आने वाले इलेक्शंस में मुकामी MNA MPS को मुंतखब करके जो है वो असम्बलियों तक पहुँचाया
चाहेंगे। जी, सनतकारों ने शरह सूद में कमी का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आज शरह सूद का फैसला करेगी। मजीद जानेंगे अशरफ खान से। देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अहम दिन है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा और शरह सूद 22% पे उसका फैसला होगा। मार्केट की ज्यादातर की ये राय है कि शरह सूद 22% बरकरार रहेगी। यहाँ इंडस्ट्रियल माहिर जो है महमूद मौलवी, जो इंडस्ट्रियल मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का जो तजुर्बा रखते हैं, उनसे जानते हैं 22% शरह सूद क्या इंडस्ट्री चल सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 22% के ऊपर ना कोई इंडस्ट्री चल पा रही है, ना कोई नई इंडस्ट्री लगेगी, और अगर नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो रोजगार कहाँ से लोगों को देंगे? आप दुकान नहीं लगा सकते 22% के ऊपर। देखिए ये हम क्यों नहीं सोचते हैं कि बिजनेसमैन, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो ट्रेडर हो, वो ये सोचता है कि जी 22% के ऊपर अगर उसको 22% के जो आप कह रहे हैं ना, उसको अगर बैंक से लेगा तो उसको 23.5, 23.75 और 24 पे मिलता है, और अगर वो बैंक में जो रखते हैं उसके ऊपर उनको मिलते हैं 20%। तो अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो और वो 20% पे या 22% पे रखता है तो उसको 2.25 लाख रुपया महीना मिलता है। तो उसको क्या जरूरत है काम करने को? और अगर जब वो कारोबार नहीं करेगा 1 करोड़ वाला, और 1 करोड़ वाला वो है कि जो एक छोटा सा ट्रक चलाता है, आज वो भी नहीं मिलता, ठीक है। अगर वो 1 करोड़ वाला सोचता है कि यार मेरे को 2.25 लाख रुपया बगैर किसी के बैंक के इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं कारोबार नहीं करेगा। अगर वो सोचता है कि जी मैं 1 करोड़ रुपया बैंक से लेके करूं तो वो 2 लाख रुपया महीना उसको किस्त नहीं भर रहा, सूद भर रहा है। 2 लाख रुपए सूद भर रहा है और 5 लाख रुपए अगर वो किस्त भरेगा वो निकाल नहीं सकता है जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं लेके आएंगे। हाँ, टैक्सेस वसूल करें, इंटरेस्ट रेट कम करें, टैक्सेस वसूल करें, और वाइट मनी को लेके आए सर्कुलेशन में। इस वक्त जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, देखिए ना, उसके अंदर जो लोग पार्क कर रहे हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन होनी चाहिए। जी, जैसे कि आपने सुना कि जो बुलंद शरह सूद पे इस पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और साथ ही ये तजवीज़ दी है जो लोग टैक्स नेट में नहीं उनको टैक्स नेट में लाया जाए ताकि इनकम बढ़े और मईशत चल सके। जी, लियाकताबाद सुपरमार्केट की जगह रिहायशी इमारत की तामीर के फैसले को ताजरों ने मुआशी कत्ल करार दे दिया। कहा मार्केट में 900 दुकानें हैं, सैकड़ों लोगों का कारोबार वाबस्ता है। इस हवाले से काविश मेमन से मजीद जानेंगे, बताइएगा। हुकूमत इस हवाले से सोच रही है कि लियाकताबाद सुपर मार्केट की जगह रिहायशी और कमर्शियल इमारत तामीर करने का फैसला किया जा रहा है। इस हवाले से जो मार्केट की एसोसिएशन है वो क्या राय रखती है, मैं सर हसीन कुरैशी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सुपर मार्केट एक यकीनन कदीम मार्केट है, लेकिन आपको पता है कि ये दीगर मार्केटों के मुकाबले में अगर आप देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर एक बहुत मजबूत है। अगर टेक्निकल बुनियादों पे कुछ इश्यूज़ हैं तो इसकी रेनोवेशन के ज़रिए इसको बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ तकरीबन 900 के करीब दुकानें हैं जो यहाँ पे लोग अपना रोज़गार कमाते हैं, यानी सैकड़ों लोग इस रोज़गार से वाबस्ता हैं, और सैकड़ों लोग जब वाबस्ता हैं तो समझ लो जो ख़ानदान मिलाएंगे तो हज़ारों लोग इससे मुतासिर हो जाएंगे अगर इसको समझ लें डिमोलिश करते हैं या इसकी जगह प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि निगरान हुकूमत को इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, तो इसको आने वाली हुकूमत पे छोड़ना चाहिए। और ये जो फ़ैसला है या तजवीज़ है तो हम ये चाहेंगे या हम ये समझते हैं और इंशाअल्लाह मुलाकात भी करेंगे सीएम से, मेयर कराची से, कि ये इसको बजाय आप इसको डिमोलिश करने के इसको बेहतर तरीके से इसको रिनोवेशन कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर और बेहतर किया जा सकता है ताकि दुकानदार जो है वो पहले आपने देखा कि पिछली हुकूमतों में भी 10,000 के करीब दुकानें तोड़ी गई थी, तो अब ये इन जो 900 और 1000 दुकानदारों का होगा, इनका क्या मुस्तकबिल होगा, तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। देखिए मैं सर हसीन कुरैशी मौजूद थे, उनका कहना है कि लियाकताबाद सुपर मार्केट के हवाले से जो फैसला किया गया है, तजवीज़ सामने आई है, उसकी मुखालफत की और कहा है कि ताजरों का माशी कत्ल के मुतरादिफ होगा। जी, अहम खबर शामिल करें। अब्बासी शहीद अस्पताल में RMOs की कमी, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के MC को खत। अब्बासी शहीद अस्पताल और KMC के दिगर तिब्बी इदारों में इंतजामी ओहदों पर अफसरान की तैनाती की तजवीज़ दी गई है। बात करेंगे राबिल अशरफ से। राबिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अब्बासी शहीद अस्पताल में RMOs की कमी है। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज KMC को जो है वो खत अरसाल हुआ है। अब्बासी शहीद अस्पताल और के दीगर तिब्बी इदारों में इंतजामी ओहदों पर जो है वो अफसरों की तैनाती की जो है वो तजवीज़ की गई है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें जो है वो जूनियर RMO को दी जाएं, इसमें खत में लिखा गया है। जबकि जब से सीनियर DMH KMC के ओहदे का चार्ज संभाला है, अब्बासी शहीद समेत दीगर तिब्बी इदारों में इंतजामी आसामियां जो है वो अरसा दराज से जो है वो खाली है।
खत में ये भी कहा गया है कि असामियों पर ज्यादातर बासर अफसरान जो है वो तैनात है और खाली और बासर असामियों के बाद अस्पतालों की जो कारकर्दगी है वो भी जो है वो मुतासर हो रही है। साथ ही साथ अब्बासी शहीद अस्पताल और दीगर अस्पतालों के काम को हमवार करने के लिए इंतजामी बुनियादों पर जल्द तब्दीलियां जो है वो जरूरी है। डायरेक्टर डॉक्टर रेहान आरएमओ को बतौर MS अब्बासी शहीद अस्पताल के तौर पर काम करने की जो है वो तजवीज़ की गई है, जबकि MS अब्बासी शहीद डॉक्टर नजीम अहमद को खाली असामी पर DMS जिंदाबाद जनरल अस्पताल के तौर पर काम करने की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है, जबकि DMS डॉक्टर नसीम को खाली असामी पर DMS SRS जनरल अस्पताल के तौर पर काम करने के लिए जो है वो मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर दौरान के मुताबिक अपने मफाद के लिए सीनियर डायरेक्टर जो है अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए ये जो है वो काम कर रहे हैं। जी ठीक है राबेल, आपने हमें अपडेट किया। कोरंगी नासिर कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इलाके की गलियों में गंदा पानी बहने लगा। मजीद बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी के इलाके नासिर कॉलोनी में मौजूद हूँ। जो एक तरफ जो है वो नासिर कॉलोनी है, दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो वो जिया कॉलोनी जो है वो कहलाता है। और अगर आम इंतखाबात के हवाले से बात करें तो ये NA 234 का जो है वो हल्का है। इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि आप यहीं के रहायशी हैं? जी बिल्कुल। तो ये कितने अरसे से सीवरेज का पानी है? कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने। तो अब तक हम इंतखाबात की बात करें तो कोई उम्मीदवार नहीं आया, कुछ पता चला किस वजह से इतना पानी है? 2-3 दिन पहले यहाँ रोड ब्लॉक किया था तो 2 दिन का टाइम लिया था, लेकिन अभी तक कोई रद्द अमल तो नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो यहाँ रोड की कुछ ऐसी है कि 2 दिन का टाइम दिया गया था। अब रक्षा वालों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो ब्लॉक डाल दिए जाते हैं। शहरी अपनी मदद आपके तहत जो है वो खुद ही जो है वो अपनी बाउंड्री बनाते हैं, अपना ब्रिज बनाते हैं। अंकल बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा कि नमाज पढ़ने जब आप जाते होंगे तो बड़ी मुश्किल होती होगी यहाँ से? मैम हम इतने परेशान हैं, तकरीबन 15 दिन हो रहे हैं इस चीज़ में। कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जब पाँव ख़राब हो तो मस्जिद में नमाज हमारी नहीं होती। आप ये बताइएगा कि आप खातून हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सड़क भी खराब है, तो झटके लगते होंगे तो आपको डर लगता होगा कि गिरना? और लगता है, नमाज के कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते अगर इधर आ जाते हैं तो। कोई तवज्जो नहीं। गटर खुलते हैं 2 दिन के बाद फिर भर जाते हैं। कोई 3 महीने से 4 महीने से सिलसिला चल रहा है, ये कोई तवज्जो ही नहीं देता इधर। बिल्कुल, शहरी ये कहते हैं कि क्या मुतालबा करें, कोई सुनने वाला नहीं। उम्मीदवार सिर्फ जो है वो अपने वोट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम देख रहे हैं कि मुश्किल बहुत ज़्यादा है, ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक का निज़ाम हमें जो है बरकरार होता हुआ नज़र आ रहा है, ना ही अगर हम बात करें कि सड़क की क्या सूरत हाल है, सीवरेज का क्या निज़ाम बेहतर है। तो यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो तबाहाली का शिकार है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई गटर में भी गिर सकता है, क्या पता कि इस रोड पे जो है वो कोई गटर भी खुला हो, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। मच्छर जो है वो यहाँ इलाके में हो रहे हैं, तो बीमारी का ये सबब भी बन रहे हैं। लिहाजा उम्मीदवारों को चाहिए कि इंतखाबात में बहुत ही कम वक्त रह गया है। जो यहाँ के रहायशी हैं उनसे जब वोट लेने आए तो उनके मुतालबात भी पूरे करें, इन जैसे बुनियादी मसाइल को भी जो है वो हल किया जाए। जी। शहर कायद में चावल और चीनी की कीमतें भी बढ़ने लगी। चीनी 3 रुपये और चावल 30 रुपये किलो तक महंगे हो गए। मजीद बताएंगे बसीम इफ्तिखार। शहर कायद में हम देख रहे हैं कि ग़िज़ाई अजनास शहरी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है। बिलख़ुसूस होल सेल के तौर पर चीनी और चावलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। चीनी जो है वो तकरीबन 2 से 3 रुपये फ़ी किलो होल सेल की सतह पर महंगी होकर 134 रुपये किलो पर जा पहुँची है। और इसी तरीके से नया चावल और जो पुराना चावल है उसकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। चावल और चीनी क्यों महंगी हुई है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जोड़िया बाज़ार के ताजिर अब्दुल मुनाफ। इनसे जानते हैं। जी मुनाफ, ये बताएंगे कि चावल और चीनी जो है वो उसकी कीमतों में इजाफे की वजह क्या है? भाई चीनी की इजाफे की वजह कोई है ही नहीं। हर अभी मिलें सारी चालू पड़ी हुई, ये नहीं कि एक भी मिल चालू। अभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये जो इस टाइम पे पहले जो 15 रुपये भी हो गई थी चीनी, इसके बाद 20 रुपये हो गए, फिर इसके बाद 25 रुपये हुई, 30 रुपये हुई, मगर अभी फिर वापस वही 34 रुपये क्यों हो रही है? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं जब ही हो रही है। अब ये रमज़ान रजब शाबान आने वाला है तो इस वजह से कर रहे हैं कि आदमी गरीब को मारना ही है इन्होंने, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी चावल 20-25 रुपये बढ़ गए, किस बात पे बढ़े भाई? ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है जब ही बढ़े ना, तो ऐसे तो नहीं बढ़ सकता कोई माल। आपके पास है माल, आपने रख लिया, आपने महंगा हो गया, जब ही बेचना है। बाकी तो ऐसे तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, एरी टोटा, एरी 6 ये एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी तो ये बड़े चावल तो कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो कहाँ गए? ये
ये थे अब्दुल मनाफ, जिनका कहना है कि चीनी और चावलों की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और बिलख़ुसूस कोशिश ये की जा रही है कि रमज़ान मुबारक से कबल जो है वो इन चीज़ों को ज़ख़ीरा करके इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएँ, जिसकी वजह से शहरियों को बिलख़ुसूस गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी, कराची में पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल सैकड़ों गाड़ियां नाकारा होने का इंकशाफ हुआ है। करोड़ों रुपए मालियत की ये गाड़ियां गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। मजीद बताएंगे मेराज अख्तर। कराची शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए पुलिस अपने तौर पर काम करती रहती है। उसमें ज़ाहिर सी बात है कि उनको गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की कमी का सामना भी रहता है। उनमें से बहुत सारी ख़राब भी होती हैं, जिन्हें मुरम्मत के लिए जो है सिंध पुलिस का जो मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहाँ लाया जाता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल नाकारा हो जाती हैं तो फिर उनको ऑक्शन कर दिया जाता है। तो इस वक्त ये फैसला किया गया कि 552 गाड़ियाँ हैं इस वक्त जो सिंध पुलिस की, जो बिल्कुल नाकारा और नाकाबिल इस्तेमाल हालत में यहाँ जो है सेक्शन में खड़ी हुई हैं, एम्प्टी सेक्शन में, क्योंकि उन पर अब अखराजात इतने हैं कि उस तरह में नई गाड़ी आ जाएगी। तो उसके लिए फैसला किया गया कि इन गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाए और अगले माह जो है इनको नीलाम किया जाएगा। इस हवाले से AIG एम्प्टी सेक्शन हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद शेख। हम उनसे पूछेंगे कि इस नीलामी का प्रोसेस क्या होता है और कितनी गाड़ियाँ हैं जो कि नीलाम की जा रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, ये बताइएगा कि कितनी गाड़ियाँ हैं जो नाकारा हो चुकी हैं और क्या वजह है कि उनको नीलाम किया जा रहा है और कब किया जा रहा है? ये 552 गाड़ियाँ हैं, ये जो है ये कंडेम गाड़ियाँ हैं और ये नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी हैं, तो इनको हम ऑक्शन के लिए कर रहे हैं और ये प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है ये गाड़ियाँ जो है नीलामी हो जाएगी इनकी। अच्छा, आमतौर पर जो हमने देखा है कि पुलिस की गाड़ियाँ जो है थानों के बाहर भी हमें ख़राब खड़ी हुई या ख़राब हालत में नज़र आती हैं, तो उनकी भी रिपेयरिंग होती है या वो गाड़ियाँ भी यहाँ ही उठा के लाई जाती हैं या उनको खुद बनवाते हैं थाने वाले? तो थानों का बजट होता है उसमें से खुद बनवाते हैं और कभी कभार हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती है तो हम भी उसको जो है वो इंटरटेन करते हैं। ठीक है। तो जुनैद शेख साहब का कहना है कि अगले महीने जो है वो इसकी गाड़ियों की नीलामी होगी जो सिंध पुलिस के इस्तेमाल में थी, जिनमें बड़ी मोबाइलें भी शामिल हैं, छोटी मोबाइलें भी शामिल हैं, जीपें हैं, उसके अलावा मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। और जो उनसे रेवेन्यू जनरेट होगा वो फिर जो पुरानी गाड़ियाँ जिनको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है उसका बजट जो है उन पर खर्च किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो कराची और सिंध पुलिस के जवानों के और थानों के इस्तेमाल में रहें। जी।